Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 12 February 2022 and I am teaching you chapter number 20. The name of the chapter, Unity in Diversity. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. To bind the nation, we have some national symbols. The main national symbols are national flag, national anthem and national emblem. Okay. So but beside this there are other national symbols also. For example, we have national animal, national bird, national flower, national fruit. Okay, so beside these national symbols, that is national flag, national emblem and national anthem, we have other national symbols also. Okay, so that is the reason, like national flower, national fruit, national animal, national river, national tree, national bird and national currency. Okay, and after that what we have discussed in the video, after that student we discuss that after this we discuss that rules, what are the after that I explained you about the national flag. Okay, so see, our national flag is rectangular in shape and it is tricolor. The upper color, the color which is on the top, that is saffron, in the middle white, and at the bottom it is green color. So, and in the middle white color you see a Ashoka chakra is also there. It is the symbol of dharma and there are 24 spoke in this chakra. Okay, and as I explained you earlier also that saffron color stand for the sacrifice. ठीक है आज़ादी इतने आसानी से नहीं मिली है बेटा, बहुत लोगों ने इसके लिए जान दी है. ठीक है, तो सैफ्रॉन कलर जो टॉप पे है वो ये बताता है कि बहुत से लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान भी किया है, प्राणों का. ठीक है, तो दैट इज द रीजन सैफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर द sacrifice. White color for the peace. Okay, we always follow the path of a non-violence. White color stand for the peace and green is the prosperity, that is the हमारे देश की खुशहाली. Okay, after that we discuss what are the rules that we should follow at the time when we host the national flag. Now in today's video we will start with the national anthem. National anthem. So our national anthem, what was the name? Jan Gan Man was written by Rabindranath Tagore. So our national anthem Jan Gan Man was written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore.
Okay, the song had 5 stanzas, but the first was chosen to be our national anthem. देखो बहुत लंबा, अब इसमें 5 स्टेंजास हैं इस सॉन्ग में, बट ये जो जन गण मन है इसी को हमने नेशनल एंथम चूज किया है, ठीक है, चूज टू हैव अवर नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है। सो एंथम इज आल्सो अ सिंबल ऑफ यूनिटी। सी, so what is the reason for it is written in the book, anthem is also the symbol of unity. See student, at the time of anthem we all stand in a attention position, ठीक है। and this song, ये जो national anthem है, तो it is sung by all the people विच आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। देखो नेशनल एंथम ये सबको रिलीजन से, कास्ट सिस्टम से, ये सबसे बहुत ऊपर रखा गया है, ठीक है, उससे इन चीज़ों को बहुत ऊपर रखा गया है। उसका रीज़न ये है बेटा कि ये क्या है, देश को बाइंड करके रख रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल एंथम क्या है, इट इज सिंग बाय ऑल द पीपल, और यू कैन से ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ये नहीं है कि कोई पार्टिकुलर रिलीजन के लोग ही इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमारी नेशनल एंथम है, जब भी हम इसे सिंग करते हैं तो हम अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है, द पीपल बिलोंगिंग, ऑल रिलीजन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन और एनी कास्ट, ऑल द पीपल सिंग नेशनल एंथम, ओके, बिकॉज इट्स अ नेशनल anthem, they all sing this national anthem. So that is the reason you can say national anthem is also a symbol of unity. इसलिए हम कह सकते हैं कि नेशनल एंथम भी सिंबल क्या है, यूनिटी का, क्योंकि इसे एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन जो इस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, सो दे सिंग दिस सॉन्ग, ओके। अब नेशनल एंथम की अगर हम बात करें बेटा, कब ये नेशनल एंथम कब हम लोग सिंग करते हैं, तो एज ए स्टूडेंट, जैसे आप लोग क्या हो बेटा, इस समय स्टूडेंट हो, तो एज ए स्टूडेंट वी डेली सिंग दिस नेशनल एंथम एट द टाइम ऑफ ए असेंबली, ठीक है। एज ए स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत सी मॉरल वैल्यूज हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है, और उसी को फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैरी करते हैं, उसी चीज़ को फिर हम लोग आगे कैरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बहुत स्मॉल एज से करते चले आ रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें हम अपने आप कैरी करेंगे, ठीक है। हम बड़े भी हो जाएंगे, हमारी एज बढ़ भी जाएगी, लेकिन जब भी नेशनल एंथम का सॉन्ग कहीं सिंग हो रहा होगा, सबसे पहले हम तुरंत अटेंशन में खड़े हो जाएंगे और वी आल्सो स्टार्ट सिंगिंग। तो ये सारी चीज़ें बचपन से ही आज हमारे हैबिट्स में आती हैं, ठीक है, जिनको हम फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब देखो नेशनल एंथम है ना, तो एज ए स्टूडेंट देखो, अगर इससे हर स्कूल में डेली असेंबली में नेशनल एंथम होती ही होती है, ठीक है, सारे बच्चे मिलके डेली नेशनल एंथम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग दूसरे ऑल अदर पीपल्स की बात करें जो स्कूल्स में नहीं है, ठीक है, स्कूल में एज ए स्टूडेंट लाइफ में आप 1 से 12 तक स्कूल्स में पढ़ोगे, आप क्लास 1 का बच्चा भी नेशनल एंथम सिंग करता है, क्लास 12 का भी, सारे बच्चे, और डेली ये है, ठीक है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल्स हु आर मतलब पास आउट द स्कूल्स और दे आर इन डिफरेंट वर्क। तो this song is very important and this song we sing it an important occasions, ठीक है। important occasions में आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस डे, इंपॉर्टेंट ओकेजन में आपके हो गया इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ठीक है। तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन वेन एवर द एंथम इज बीइंग संग। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को पहले ही डिस्कस कर दिया था कि जब भी नेशनल एंथम संग होती है, सिंग करते हैं,
तो वी ऑलवेज स्टैंड इन अ अटेंशन पोजीशन। हम किस पोजीशन में स्टैंड होते हैं? हमेशा हम किस पोजीशन में स्टैंड होते हैं? अटेंशन पोजीशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम मीन्स हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से पढ़ो, जैसे आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो तो उस हर स्कूल के अपने अलग अलग एक मोनोग्राम होते हैं। ठीक है, जैसे आप आते हो स्कूल, आपके शर्ट पे, क्योंकि गर्मियों में शर्ट होती है, उस समय विंटर है, विंटर में आप स्वेटर वेयर कर रहे हो, तो आपके स्कूल का एक मोनोग्राम होता है। ठीक है, इन द सेम मैनर हमारी पूरी कंट्री इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या है? नेशनल एम्बलम है। ठीक है, ये पूरी कंट्री का राष्ट्रीय चिन्ह है। मतलब ये वाला सिंबल आप कहीं भी देखोगे तो किसी भी चीज पे देखोगे तो आप उसको देख के समझ जाओगे कि दिस थिंग बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल एम्बलम। नेशनल नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है बेटा? नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, दिस नेशनल एम्बलम वेयर यू आर एबल टू सी दिस। तो आपको व्हेन यू लुक एट ए रूपी, ठीक है, जब आप रुपीस को देखते हो, ठीक है, सो व्हेन यू लुक एट ए रूपी व्हाट डू यू नोटिस? तो आप वहां पे क्या नोटिस करते हो? ठीक है, द सिंबल विद लाइंस, ये सिंबल आपको देखने को मिलता होगा अपने करेंसी पे। दिस इज अ सिंबल, ये सिंबल आप लोग अपने करेंसी पे देखते होगे। ठीक है, ये 4 लाइंस हैं, लेकिन सामने से पिक्चर दी गई है तो एक सेंटर में दिखता है और 2 साइड में, और जो पीछे बैक वाला है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो पीछे बैक वाला है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, सो द सिंबल विद लाइन विद दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, वी फाइंड इट ऑन ऑल। अब देखो हमें ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? यू आर एबल टू सी दिस ऑन द करेंसी नोट, जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है, मनी। ठीक है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी इन द कॉइन्स एंड नेक्स्ट है पेपर ऑफ द गवर्नमेंट, पेपर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, पेपर ऑफ द गवर्नमेंट। सो वेयर यू विल सी दिस सिंबल, बेटा ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको ये करेंसी नोट्स में, कॉइन्स पे, पेपर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी जगह आप लोग को ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। इट इज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है? ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट है। जैसे बेटा आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो हमें क्या ठीक है, तो अगर हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो पासपोर्ट पे यही नेशनल सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसको उससे ये पता चलेगा कि दैट पर्सन बिलोंग टू विच कंट्री, दैट पर्सन बिलोंग टू कंट्री इंडिया। ठीक है, जैसे हम अदर्स अपनी कंट्री के एनी पार्ट में कहीं भी आप आ जा सकते हो, बट इफ़ यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री तो आपकी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। भाई दूसरा देश आपको अपने देश में आने दे रहा है और उसको यही नहीं पता कि आप किस कंट्री के हो, अगर आप कुछ क्राइम कर देते हो तो वो क्या करेगा। इसलिए व्हेन वी एंटर अनदर कंट्री वी नीड अ पासपोर्ट, और इस पासपोर्ट पे भी आपको यही सिंबल
देखने को मिलेगा। बाय सीइंग दिस सिंबल वी द अदर country people will understand that you belong to which country, you belong to country India. So another important thing about this is it is the official seal of the government. It is the official seal of the government. Official seal of the government. ठीक है. Now it was taken from the Sarnath line capital erected by Ashoka. Ashoka was a great सम्राट. सम्राट अशोक की कहानी आप लोग अभी हायर क्लासेस में जाओगे बेटा तो आप लोग को 6 क्लास में, नॉट इन 5, 6 में आप जाओगे तो वहाँ हिस्ट्री लगेगी, एक सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री. तो वहाँ हो सकता है सम्राट अशोक के लाइफ के बारे में कोई चैप्टर हो जहाँ आप लोग डिटेल में पढ़ो. हु वाज सम्राट अशोक, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ो. तो ये सम्राट अशोक के समय पे ये जो लाइन कैपिटल थी, ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में सारनाथ पे है. ठीक है, तो यही से ये सिंबल लिया गया है. ठीक है. इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. द इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. अब ये जो नेशनल एम्बलम, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द, इट इज टेकन फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल. सारनाथ में जो लाइन कैपिटल थी इरेक्टेड बाय द अशोका. ठीक है. एंड व्हेन दिस नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड, मतलब ये कब से हमारी कंट्री में लागू हुआ? तो आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 वी गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. बट हाउ टू रूल द कंट्री? फॉर दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन. अब इतनी बड़ी कंट्री को रूल कैसे करना है, इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग गया. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज ए रिपब्लिक डे क्या करते हैं बेटा? सेलिब्रेट करते हैं. तो ये अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आपका नेशनल एम्बलम है, तो व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री द फ्लैग इज होस्टेड एंड वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. नाउ next thing about this, forming an integral part of the emblem is the motto inscribed below in Devanagari script. आप इसके नीचे ये देखोगे, ये खुद लिखा गया है. देवनागरिक मतलब जो हिंदी आपकी लिपि है, इसमें आप इसमें मोटो इसका क्या लिखा हुआ है? जैसे आपके स्कूल के मोनोग्राम में क्या लिखा है? ट्रूथ इज लिखा है ना. इसी तरह इसका मोटो क्या है? ये अपने से लिखा हुआ है. सारनाथ से क्या लिया गया था? सिंबल लिया गया था, लाइन वाला. और उसके नीचे जो ये लिखा है बेटा सत्यमेव, उसके नीचे जो ये लिखा है सत्यमेव जयते. ठीक है. ये जो सिंबल लिया गया सत्यमेव जयते में, ये देवनागरिक लिपि में ये मोटो जो है इसे ऐड किया गया है. ठीक है, इसे क्या किया गया है? ऐड किया गया है. सो ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, हमेशा किसकी विन होता है? कौन जीतता है? ट्रूथ. द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. अब देखो इंडिया का इसी तरह एक नेशनल सॉन्ग भी है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंदे मातरम. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया. ठीक है, इसी तरह क्या है? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम. वंदे मातरम.
and this song was composed by Bankim Chandra Chatterjee. Okay, thank you student.